Assalamu alaikum and welcome to the 12th lecture of Management Information Systems. In all the previous lectures, we went through the systems development life cycle, which comprises of a lot of developmental approaches. And within those developmental approaches, basically there are different phases that are ongoing and that are making all of those working networks and all of those executions possible um, of all of the day-to-day activities और जिस किस्म के भी फ्लो में नेटवर्किंग चल रही होती है डेटाबेस की मैनेजमेंट चल रही होती है इंफॉर्मेशन और सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स चल रही होती हैं उन सबको they basically are going through a lot of stages and phases basically. As repeatedly we have been studying that an MIS comprises of three systems and approaches that are the TPS, the DSS, and the ESS, the Executive Support System. These phases basically are working or they are working under an MIS network. And if we talk about the three phases or the three networks that are working under MIS, ye on their own, they are basically a network or an amalgam of a lot of networks basically, जो different stages or different phases से constitute करता है और it comprises of such phases and stages और उन्हीं phases और stages के ही वजह से we work about a solution basically. जो end result या जो output हमारे पास at the end of the day वो जो एक single output आ रहा होता है उन सारे stages MIS के उन three networks उन three systems उनके अपने system development life cycles और उनके अपने phased stages और module phases से गुजर रहा होता है. Now the term here that I used was that module phases होते हैं. किसी भी सिस्टम को हम अगर हम जिस तरह से पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे स्टेजेस पढ़े थे किसी भी फेज के वी गेट टू नो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स हम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अपने रिक्वायरमेंट्स देख रहे होते हैं हम एनालाइज करते हैं हम एनालाइज करने के बाद उस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं एंड अगर तो वो हम रिव्यू में जब लेकर आते हैं अगर वो ठीक होती है if it is worth accepting if it is catering all our needs then we move to the final construction of that prototype or that development methodology otherwise we have to move back to our analysis phase इसी तरह से किसी भी मॉड्यूल फेज का मॉड्यूल हम कहते हैं किसी भी सिस्टमाइज्ड नेटवर्क को या उस किस्म का कोई भी डेवलपमेंटल फेज जो आपके MIS के अंडर किसी भी जगह पर रन हो रहा होता है. So module phases are divided into three kind of things. The first one is a report writer. The third one is a database, and the second one is a database, and the third one is a web interface. Um, Obviously, they vary within sizes, within nature, within the essence of work that they are supposed to do with each other. और दूसरा ये कि जो इनके performance है, it is totally varied. It is totally separate from each other. और अगर हम इन modules को भी stage wise देखें, जो कि हम इनको तीन चीज़ों के अंदर divide करेंगे in the further thing that we are going to discuss right now. तो उसमें भी इनकी अप्रोच डेवलपमेंटल अप्रोच टोटली डिफर करती है which you can see right here. Okay, now coming before to this slide, let us just first of all bring 100% clarity towards the module phases and the system that is subdivided into these major modules. The first thing is report writing. That obviously we need documentation of all the things, of all the systems, of all the developmental approaches that are happening there. उन चीज़ों की documentation होना ज़रूरी है, चाहे वो automated है, चाहे वो manual है. When it gets documented, we are basically, in other terms, establishing a database. And when we talk about a database is basically a combined network of information of data, जिसको हम एक warehouse में properly
स्टोर कर रहे होते हैं फॉर फर्दर यूजेज। ये बातें जब हम कह रहे हैं कि डेटाबेस है और हम उसको डेटाबेस वेयर हाउसेस के अंदर इनपुट करें, स्टोर करें, ऑब्वियसली इट सीम्स अ लिटिल वियर्ड टू से ऑल ऑफ दिस। हमें वो होता मतलब वो हमें टैंजिबल नहीं लग रही होती हमारी ये थॉट। लेकिन इट्स नॉट दैट वी हैव इन स्टोर लोकेशंस जहाँ पर हम इस डाटा को फिजिकली स्टोर आउट कर रहे होते हैं, स्टोर इन कर रहे होते हैं। बेसिकली दे आर स्टोर्ड जिस तरह से हम आजकल क्लाउडिंग कर रहे होते हैं। सो इन डेटाबेसेस को हम डाटा वेयरहाउसेस में मैनेज करते हैं because they are one of the biggest sources that can be used in any kind of developmental method, in any kind of SDLC, and then the similar thing that in any kind of situation जहाँ पर हम अपने नेटवर्क को इम्प्लीमेंटेशन के फेज में, फाइनल कंस्ट्रक्शन और इम्प्लीमेंटेशन के फेज में लाने से पहले हम प्रोटोटाइपिंग में लेके जा रहे हैं. So databases work there as well. Web interfaces are basically the form of networking. Okay, if I'm working on my TPS, अब TPS सामने से तो किसी और तरह से काम करता दिखाई दे रहा है कि मुझे उसमें अपनी परचेजिंग प्रोक्योरमेंट नजर आ रही है, but at the back end TPS would be something totally different. It would be having a network that is connected to the executive support system. It could maybe connected to your decision support system. It could also be connected to any kind of developmental system. वो आपके SDLC से connected हो सकता है, उसी का part भी हो सकता है. तो इसको मैं web interfacing कहूँ कि ये मॉड्यूल के उस सिस्टम के ये बहुत सारे phases हैं. Coming to each of the phase or each of the module system, जिस तरह हमने कहा कि the number of modules basically they vary within the system, or they not only vary typically या tangibly they don't only vary, but अगर हम इनको काम वाइज भी देखें तो उनके हर प्रोस्पेक्ट का फ्लो वुड बी समहाउ द सेम, लेकिन उनसे जो हम ऑपरेशनल एक किस्म की एसेंस ले रहे हैं या जो हम उससे ऑपरेशनल काम उससे ले रहे हैं, वर्कलोड ले रहे हैं, दैट कैन डिफर. बाहर बाहर से यकीनन नहीं लग रहा होगा, लेकिन एट द बैक एंड ये चीज़ें डिफर ज़रूर कर रही होती हैं. जिस तरह से स्टेजेस ऑफ अ फेज्ड डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी में हमने पढ़ा था दैट द फर्स्ट स्टेप, चाहे हम प्रोटोटाइपिंग कर रहे हों या हम अपनी फाइनल कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे हम SDLC की बात कर रहे हो, everything, each and everything or all the steps start with the preliminary investigation. जब तक उस चीज के अंदर आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके नहीं देखेंगे that what kind of problem or what kind of need do you need to cater right here, you won't be able to provide the right kind of solution on the right kind of to the right kind of problem or to the right kind of systems of network. So preliminary investigation is one of the most important criteria that are done at the very beginning or at the very start. अगर हम रिपोर्ट राइटर का फेज मॉड्यूल फेज देखें तो उसमें रिपोर्ट राइटिंग में report writing goes through the phases of analysis, design, design के बाद उसको construct करना हम शुरू करते हैं, and then we get a review from the users. अब the blue segment, the light blue segment in all three of these things, in report writer segment, in database phase, and in web interface, uh, the area that they have been shaded as that they have shaded it as light blue is basically denoting that this is your prototype phase, because right now right here you can see that we are getting our user review. ये जो user review है ये हमारे पास हमारा end user नहीं है, ये हमारा सिर्फ एक रिव्यू कस्टमर है, जो कि इन लिटरल टर्म्स बिल्कुल कस्टमर नहीं होगा हमारा आउटसाइडर, ये हमारा इंटरनल यूजर या इंटरनल कस्टमर होगा जिसके थ्रू हम ये सारा सिस्टम अप्रोच का फीडबैक ले रहे होंगे, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोटोटाइप और प्रोटोटाइप को हम फाइनल कंस्ट्रक्शन
या फाइनल इम्प्लीमेंटेशन पे मूव आउट करने से पहले वी टेंड टू टेक अ यूजर रिव्यू, जिसको हमने पिछले लेक्चर्स में पायलट स्टडी के तौर पर भी डिनोट किया था विद द टर्म ऑफ पायलट स्टडी. So analysis design, we go through a preliminary construction and then we get a user review. If it gets accepted, we obviously move towards the final construction of the system design or the development method. Um, and then we run it, we install it and we run it. But if there is some kind of hindrance or if there is some kind of ambiguity or that approach or that prototype basically requires some kind of improvement in it, जो कि हमें feedback और user review से मिली है, तो we would be requesting for revision. अब यहाँ पर प्रोटोटाइप का होना इसीलिए फायदेमंद है कि हमने उसको फाइनल कॉल नहीं दी थी. It was just a prototype. It was just an artificial kind of system जिसको हम develop और हम implement और run और install करने से पहले we were just going through it and checking through it. Similarly, हमारा जो database का module phase है वो भी इसी तरह से होगा कि before final construction we need to get a user review, and similarly जो हमारा web interface है वो भी इसी तरह से होगा. यहाँ पर बात एक ये आती है that there are certain amount of people that are working behind all of these modules or behind all of these systems. They can be technicians, they can be people who have an engineering background, they can be people who know how to operate on softwares, they know how to run softwares, they know how to work on them, they know how to tackle such situations that contain such things. ऐसे तमाम लोग जो बेसिकली हमने पढ़ा कि एक तो टॉप डाउन अप्रोच होती है, एक बॉटम अप अप्रोच होती है. इन सब पे जो लोग काम कर रहे होते हैं दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टीम. अब प्रोजेक्ट टीम क्या कर रही होती है? इट इज वर्किंग ऑन, अगर मैं सिर्फ एक टर्म में इसको फ्रेज करूं, इट इज वर्किंग ऑन MIS. लेकिन दैट इज एन एक्सट्रीमली फैंसी स्टेटमेंट टू से. अंदर ही अंदर जो MIS के अंदर एक नेटवर्क या एक वेब इंटरफेस कह लें या एक सिस्टमैटिक अप्रोच चल रही है जिसमें MIS है, TPS, DSS, ESS हैं और उनके अंदर रनिंग आर द SDLC, a number of developmental methods. Similarly, stages approach जिसके phases हमने पढ़े, मॉड्यूल phases चल रहे होते हैं. तो ये सारे जो ongoing processes हैं इनको overlook करना भी ज़रूरी होता है. Although they are not things that are tangible, उनके ऊपर overlooking करना निहायत ज़रूरी है. So that requires basically a project team जो उन चीज़ों को overlook कर रही होती है या overhead कर रही है. And a project team includes of all the people who participate in the development of an information system. And obviously, it has a leader, जो कि उस instance पे provide करी होती है खास किस्म की direction. Obviously, that is what a leader is supposed to do. और इसी तरह से ये जितने भी हमारी प्रोटोटाइपिंग है, SDLC या डेवलपमेंटल मेथड्स है, उनको एक खास किस्म की इस किस्म की टीम जो सॉफ्टवेयर्स और इन चीज़ों के ऊपर हैज़ अ गुड हैंड ऑन देम, वो उन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं एट द बैक एंड. हम इन चीज़ों की कॉस्टिंग अगर देखें, बिकॉज वी इन द वेरी स्टार्ट लर्नड दिस थिंग कि जितना हमारी इंफॉर्मेशन क्लाउडेड होती जा रही है, क्लाउडिंग के सिस्टम पर आती जा रही है, वी लिव इन एन एरा दैट इज कंप्लीटली फुल ऑफ नॉलेज बूम. एनी पीस ऑफ नॉलेज, चाहे वो रॉ फॉर्म में है, चाहे वो डेटा फॉर्म में है, चाहे वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, that is easily accessible to every single person on this planet. इन चीज़ों को तभी हम कहते हैं कि हम we manage them in databases and in database warehouses. कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कॉस्ट भी होती है कोई ना कोई, जो वो उस कंपनी को इनकर करनी पड़ती है, जो वो इनकर कर रही होती है. The bigger the organization is,
उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ही स्ट्रांग होंगी, उतनी ही नीडफुल होंगी और उतनी ही इनॉर्मस होंगी। अगर ऑर्गेनाइजेशंस छोटे स्केल पे काम कर रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनके पास कोई हो सकता है कि कोई MIS को हैंडल करने का प्रॉपर डिपार्टमेंट ना हो, या देयर कैन बी अ सॉल्यूशन कि वहाँ पर MIS का डिपार्टमेंट ही ना हो, बिकॉज वो इतने स्मॉल स्केल पे काम कर रही है जहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो हैं वो इजीली मैनेज एंड इजीली हैंडल हैं. But in organizations who are working from day to night and are all working on enormous global scales, yeah, even they're not even global, but they are or working on vast scales. उनके लिए ये जो सारी अप्रोचेस हमने पढ़ी, जो हमने SDLC से स्टार्ट की पढ़ना, उन सब की ये बेसिकली इनको प्रोजेक्ट्स हम कहेंगे, और इन प्रोजेक्ट्स की एक बेसिक कॉस्टिंग होती है. अब obviously they are in the form of softwares, or they are not physically in front of us. Not that we can say that हम इन चीज़ों को खरीद रहे हैं, किसी होलसेलर से ले रहे हैं, we are installing such things and then we are paying for this because उसकी कोई cost है. लेकिन इन चीज़ों की भी that are totally not physically available to us, इन चीज़ों को भी वर्क करने के साथ साथ इनकी कोई ना कोई कॉस्ट इनकर हो रही है. So how do we estimate their input, or how do we estimate the cost? Um, First thing is that we use the approach of WBS. WBS की approach में हम basically work को structures के अंदर break down कर रहे होते हैं. जैसे हम अपने business को strategic business units के अंदर break down करते हैं, उसी तरह हम अपने इस पूरे software structure को, इस पूरे work को WBS यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की अप्रोच के तहत उसके ऊपर काम करें, बिकॉज वी डिवाइड इट और वी ब्रेक डाउन इट इनटू स्मॉलर चंक्स. उससे हमें मजीद क्लैरिटी मिल जाती है. रिसोर्स रिक्वायरमेंट हमें देखनी होती है कि जो भी रिसोर्स हम ले रहे हैं, चाहे वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के फेज में हम इंफॉर्मेशन की सोर्स ले रहे हैं कहीं से, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम आवर एम्प्लॉयज, we are taking it from our technicians, we are taking it from our frontline people, we are taking it from our managerial level. तो उनसे भी जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं रिसोर्स रिक्वायरमेंट की, उसकी भी कोई ना कोई कॉस्ट लागू हो रही है. Similarly, activity duration estimates कि उस obviously time is money too, हम एक phrase सुनते हैं. So whenever we are in the phase of the analyzing of preliminary investigating systems, उनको develop करने में, उनको design करने में, उनको implement, run, उनके feedbacks run करने के लिए, monitor करने के लिए, ये सारा जो एक time होता है, वो भी as a cost हमें incur हो रही होती है, because उस time में जिस प्रॉब्लम के लिए हम इस सिस्टम डिज़ाइन को ले रहे होते हैं या उसको चला रहे होते हैं, वो एक तरह से अफेक्ट हो रही होती है. कॉस्ट एस्टिमेटिंग टूल्स एंड टेक्निक्स में वी यूज अ लॉट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स. उसमें बॉटम अप एस्टिमेटिंग होती है कि बॉटम अप एस्टिमेटिंग से मुराद कि जिस तरह हम बिल्कुल इनिशियल लेवल्स से अपनी किसी भी सिस्टम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे, तो कॉस्ट जो इनकर होना शुरू हुई, व्हाट डू वी सी कि ये कहाँ तक जा सकती है, ये कहाँ तक जाके कॉस्ट इनकर होना बंद होगी. दैट इज बॉटम अप एस्टिमेटिंग, जो कि हम डिफरेंट तरीकों से करते हैं. वन ऑफ द वेज जिसके थ्रू हम करते हैं वो एक नेटवर्क डायग्राम भी हो सकती है, वो गैंट चार्ट्स होते हैं जो कि कॉस्ट फ्लो का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि किस तरह से कॉस्ट की फ्लो आ रही है. अगर पर डे हमने एट द प्रिलिमिनरी लेवल हमने फॉर एग्जांपल XYZ अमाउंट इनकर हुई है, तो एट द डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और व्हेन वी वुड बी रनिंग दिस मॉडल, तब उस दिन जाके इसकी कॉस्ट क्या इनकर हो. इन सब चीज़ों के लिए स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, जिनको कंप्यूटराइज टूल्स भी होते हैं, जैसे हम आप देखते हो एक्सेल, बार चार्ट्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. फिर मैथमेटिकल चीज़ें भी होती हैं जिसमें आई वुड बी शोइंग यू दीज टू थिंग्स के एक नेटवर्क डायग्राम है जिसमें उसने सारा आपको एक नेटवर्किंग एक फ्लो बना के दिया कि दिस इज द समरी, द ड्यूरेशन, द स्टार्ट,
21 days is the duration. Complete अभी वो project नहीं हुआ. Start हुआ, how would it end? Duration क्या है उसकी? 5 days है, 4 days है. ये सारा हमने एक network diagram बनाई है. Now this network diagram is telling us about वो जो हम approaches पढ़ते हैं कि from day 1 to um, end day क्या अंदाजा है हमारा एस्टिमेटेड दैट क्या कॉस्ट उसके ऊपर लागू हो रही होगी. सिमिलरली वाइडली यूज्ड वे इज अ गैंट चार्ट. गैंट चार्ट्स हम जो भी फॉर्मुलेट करते हैं, इट इज अ लिटिल बिट क्रिटिकल टू फॉर्मुलेट अ गैंट चार्ट क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की. लेकिन जो भी हम एक गैंट चार्ट्स बनाते हैं, they are basically charts or flows or estimations जो कि आपको आपकी कॉस्ट जो इनकर हो रही होती है, जो हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं उसको एक बिगर पिक्चर के ऊपर हमें बता रही होती है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. अब उसके अंदर आप अपने फेजेस को भी बताएंगे कि एट व्हाट फेज. फॉर एग्जांपल आपने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के फेज पे थे, उसमें आपने एनालिसिस स्टार्ट की. एनालिसिस पे द ड्यूरेशन यू स्टार्टेड फ्रॉम डे 10 और 9 days उसके ऊपर ड्यूरेशन लगा. इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस डे एंड इट फिनिश्ड एट दिस डे. और रिसोर्स, इसकी रिसोर्सेज कहाँ से एलोकेट की? रिसोर्सेज विद इन द कंपनी थी, विद आउट ऑफ द कंपनी हमने मैनेज की थी, आउटसोर्स की थी, कैसे थी. तो ये सारी गैंट चार्ट के अंदर हम चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें. तो इट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स. सिमिलरली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट. अब ये जो बिगर पिक्चर है, जो ये आपको चीज़ नजर आ रही है, दैट इज द आउटपुट जो हम एक प्रेजेंटेशन या एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके चल रहे होते हैं. पीछे उसके चाहे गैंट चार्ट्स चल रहे हो, चाहे नेटवर्क डायग्राम्स, but this is the final thing, the final costing thing that we get. उसके बाद cost estimating outputs में you get supporting details and the cost management plan जो हमने यहाँ भी देखी कि यहाँ पर भी वो cost management planning कर रहे हैं, यहाँ पर भी cost management planning कर रहे हैं that they are trying to see the resources जहाँ से cost allocate हो रही है, या जो resources हमने कहीं outsource की हैं वो allocated हैं, उनकी कॉस्ट कहाँ से एलोकेट हो रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही, प्रोक्योरमेंट हो रही है या नहीं हो रही. हम किसी चीज़ को आउटसोर्स कर रहे हैं तो उसके क्या उसमें कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान उसका कैसे है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट द प्रोजेक्ट that are included in the project cost estimating. That is all when we discuss SDLC, different developmental methods, and the module phases and stages of development. जितने भी ये सारी चीज़ें हैं, ये one by one flow में किसी भी MIS के सिस्टम में चल रही होती है. चाहे वो हम नए सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए इनको चला रहे हों, चाहे हम करंट सिस्टम की इम्प्रोवाइजेशन या उसके हम इम्प्रूवमेंट के लिए चला रहे हों, but these things keep on going. And the same thing where I would end the lecture is that the bigger the organization is, उतनी ही हमारी ये जितनी भी developmental methods हैं, ये उतने ही complex से complex होते जाएंगे because that organization has stepped into so many places. उसका जो information dealing है या information sources हैं, it is coming from so many places because it has to deal with certain things. लिहाजा जब हम इन चीज़ों को इस तरह से लेके चल रहे होते हैं तो फिर उनकी कोई ना कोई कॉस्ट भी इनकर हो रही होती है जिसको हमें प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इट इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट. We are ending the topic that how an MIS and the developmental approaches that work under a management information system are constituted. From the next lecture, we would be starting a new topic. Please go through all of this and let me know for any queries. Thank you so much.